یہ لوگ یاجوج ماجوج جب نکل آئیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ان میں سے ایک اتنا ہے کہ اگر کسی ندی میں منہ رکھ دے گا سارا پانی پی جائے گا، کسی کھیت کو چرنا چاہیں گے ویران کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت ایمان دی۔ شب معراج کے بیان میں یہ ملتا ہے کہ ان کو دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا، تو یہ فرمایا یہ اولاد ابلیس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ جو اولاد آدم نافرمان ہے ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ یہ لوگ جب آئیں گے تو انسانی آبادی قلعوں میں، بڑے بڑے قلعوں میں، اونچی جگہوں پہ چلے جائیں گے، اپنے کچھ جانور ساتھ لے جائیں گے مویشی کھانے پینے کے لیے۔ یہ یاجوج اور ماجوج پوری دنیا کا پانی، اردو میں کہوں، چٹ کر جائیں گے۔ ان میں سے کوئی ایک کسی نہر سے گزرے گا تو وہ اکیلا ہی اس نہر کا پانی پی لے گا اور وہ نہر خشک ہو کر رہ جائے گی۔ کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے، کہیں گے یہاں تو نہر تھی، تو وہ کہیں گے کہ اب نظر نہیں آ رہی۔ بڑے بڑے سمندروں کا ذکر بھی ہے کہ وہاں سے گزریں گے اور یہ اس کا پانی پی جائیں گے۔ ہمارے ہاں سری کہلاتی ہے، گائے بیل بکرے وغیرہ کی سری پائے آپ لوگ کھاتے ہیں۔ 100 دینار سونے کا سکہ، 100 دینار کا ایک سر ملے گا۔ اتنی مہنگائی، کیونکہ چیزیں غائب ہو جائیں گی، یہ سب کچھ کھا جائیں گے، کیا درخت اور کیا پھل اور کیا دوسری چیزیں۔ یہ لوگوں کو جو بھی ان کے ہاتھ چڑھے گا اس کو بھی کھا جائیں گے۔ مسلم شریف کی ایک روایت کے مطابق یاجوج ماجوج کہیں گے ہم نے تمام اہل زمین کو مار ڈالا، اب چلو آسمان والوں کو بھی مار ڈالیں۔ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو اللہ تعالی ان کے تیروں کو جو انہوں نے آسمان کی طرف چلائیں گے خون آلود کر کے ان کی طرف واپس لوٹا دے گا۔ یعنی آسمان پر ان کا زور نہیں چلے گا۔ خون آلود ہو کر واپس آنا یہ سمجھیں گے شاید لگ گیا کسی کو اور کسی کو زخمی کر دیا، لیکن یہ ان کے لیے فتنہ ہوگا۔ اللہ تعالی کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زمین پر آ چکے ہوں گے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں، ان کے ساتھ جتنے اہل ایمان ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے۔ اللہ تعالی کیڑے بھیجے گا، بعضوں نے پرندے لکھا ہے، بعضوں نے کیڑے لکھے گا، جو یاجوج ماجوج کی گردنوں میں لٹک جائیں گے۔ کتنے سخت ہوں گے یہ وائرس، کورونا وائرس کہتے ہیں۔ سوئی کی نوک جو نیڈل ہوتی ہے نا، جسے آپ کپڑے سیتے ہیں خواتین یا ٹیلرز، اس کی نوک بہت باریک ہوتی ہے، کہتے ہیں اس سے بھی باریک ہے، نظر نہیں آتا، کتنی تباہی پھیلا رہا ہے۔ اس خدا کی قدرت کو پہچانے، وہ یہ نہ نظر آنے والے جرثوم جرم سے آپ کو کس طرح اس نے پوری دنیا کو بے بس کیا ہے۔ تو یہ وجود والے ہوں گے، تو ان وجود والوں کو، اب نمرود خدائی کے دعوے، مچھر سے مروایا اللہ نے۔ وہ جو ہاتھی والے تھے، ابرہا اور اس کا لشکر، ابابیل بھیجے، چھوٹا سا کنکر پرندے کی چونچ میں کتنا بڑا کنکر آئے گا، چنے کے برابر ہی، مگر وہ ان پر کیسے لگتا تھا، کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔ اسی طرح یاجوج اور ماجوج کی گردن میں
कीड़े, छोटा सा कोई कीड़ा होगा, लटका दिया जाएगा। एक रिवायत में कीड़ों जैसी शय का है जैसी ऊंटों या बकरियों के नाक में। हाथी दुनिया में सबसे बड़े जिस्म का जानवर है, एलिफेंट, हाथी, फील। उसकी सूंड जो होती है उसमें चींटी, बारीक सी चींटी चल जाए उसको मार देती है। कितने बड़े जिस्म का जानवर, बारीक सी चींटी सूंड में चली जाए वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए वो फुंकारता रहता है, उसे अपनी सूंड से हवा निकालता रहता है कि कोई हो तो हट जाए। खाल पे चलेगी तो नहीं, अंदर चली गई वो चींटी उसकी हलाकत का बायस। कीड़ा मामूली सा उन याजूज माजूज को, जो खेतों के खेत बंदे खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। हजरत ईसा दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह कीड़े भेजेगा जो उस कौम को तबाह कर देंगे। इनको कीड़ा जो ही लगेगा मर जाएंगे। आन की आन, मैं इसको इंग्लिश में क्या कहूं, आपकी ये जो आंख झपकते हैं आप, इसमें आप शायद सेकंड काउंट करते होंगे, हालांकि सेकंड को भी आपने 1 बिलियन टाइम डिवाइड कर लिया है या इससे ज्यादा। खरब तक भी सुना है मैंने कि डिवाइड कर लिया सेकंड को। अल्लाह ताला इससे कम मुद्दत में उस पूरी याजूज माजूज कौम को तबाह कर देगा। सुबह लोग देखेंगे तो कोई आवाज नहीं होगी और वो मरे हुए पड़े होंगे। मुसलमान कहेंगे कोई है जो जान की बाजी लगाकर उनकी खबर लाए। एक अल्लाह का बंदा अपनी जान अल्लाह के नाम पर कुर्बान करके नीचे उतरेगा, उसे यकीन होगा कि मैंने बचकर नहीं आना जो हालात हैं। तो जब वो उतरेगा तो देखेगा कि याजूज माजूज एक दूसरे के ऊपर मरे पड़े हैं। वो वहां से पुकारेगा, मुसलमानों मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुश्मनों से किफायत की है, यानी वो काफी हो गया तुम्हें और दुश्मन उसने खत्म कर दिए हैं। तमाम लोग कलों से, बस्तियों से, जहां जहां छुपे होंगे निकल खड़े होंगे, जो जानवर बच रहे होंगे वो साथ लाएंगे। लेकिन अब उनके जानवरों के लिए एक तिनका भी कहीं नहीं होगा जो अपने जानवरों को खिला सकें। उनका अपना गोश्त ही होगा जानवरों का, तो वो खुद ब खुद जानवर बगैर खाए पिए मोटे ताजे हो जाएंगे। अल्लाह की निशानियां। खुद रो, खुद रू या खुद रो कहते हैं आप। बहुत से होते हैं जिनको आप पानी ना दें तो दूसरे दिन वो सड़ जाती है घास, और कहीं जंगल में उग रही है, पानी का नामो निशान नहीं है। ये कुदरत है। मेरे रब ताला की कुदरत को आप पूरी तरह कभी भी नहीं जान सकते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने रुफका समेत सामने आएंगे। जमीन के चप्पे चप्पे पर याजूज माजूज की बदबू फैली होगी, लोगों को वो बदबू मार रही होगी। उस वक्त वो कहेंगे इस जीने से मौत भली, यानी इतनी बू होगी। तमाम लोग अल्लाह की बारगाह में रोएंगे। कोरोना वायरस में मस्जिदों से भागने वालों जरा सुन लो, तमाम लोग उस वक्त अल्लाह की बारगाह में रोएंगे जमा होकर। आज आप इबादत के लिए जमा करने से मना कर रहे हो, बाकी सब जगह जमा होते रहो। वायरस सिर्फ मस्जिद में आएगा, मस्जिद के अलावा कहीं नहीं जाएगा। अफसोस ऐसी सोच पर। मैंने कहा ना, मैं लॉकडाउन की मुखालफत नहीं कर रहा, तदाबीर की मुखालफत नहीं कर रहा। सब जगह करो ना, बाकी कहीं नहीं। मस्जिद में जमा नहीं होना। उस वक्त जब बदबू फैली होगी याजूज माजूज की, तो वो बदबू लोगों को खा रही होगी। मैं ये जो 9/11 का जो हादसा बताते हैं, 11 सितंबर 2001 की बात है गालिबन, जब ये अमेरिका में
90 मंजिला बिल्डिंगें गिराई गई थी। न्यूयॉर्क में चूहे बहुत ज्यादा हैं और सरकारी तौर पर ऐलान हुआ है वहां पर कितने गालिबन, अगर मुझे सही याद है तो 20 मिलियन या 20 लाख चूहे तो सरकारी तौर पर एडमिट करते हैं। वो जब बिल्डिंगें गिराई गई तो वहां के लोगों ने मुझे ये बात बताई कि यहां मौतें जो हुई हैं वो बिल्डिंग में लोगों की इतनी नहीं हुई जितनी बदबू से हुई है। इतनी बदबू थी उस इलाके में और कितने दिन तक रही, उससे सबसे ज्यादा मौतें हुई, क्योंकि इंसान की एक हद तक बर्दाश्त है खुशबू या बदबू की, उससे ज्यादा नहीं है। तो ये याजूज माजूज की इतनी बदबू होगी कि लोग कहेंगे कि इस जीने से मौत भली। तमाम लोग जमा होकर अल्लाह की बारगाह में फरियाद करेंगे। अल्लाह ताला 8 दिन तक गुबार आलूद हवा भेजेगा, यानी हवा आएगी उसमें गुबार होगा, लोगों पर गुबार और धुआं ही धुआं होगा, यानी इतना कि क्लियर नजर नहीं आएगी कोई चीज, वो धुआं होगा या गुबार होगा। उससे वो नज़ला और जुकाम में मुब्तला हो जाएंगे लोग, यानी उस गुबार से और उस धुएं से। उसके बाद 3 दिन उसमें मुब्तला रहेंगे। 3 दिन के बाद उनको उससे नजात मिल जाएगी। वो हवा याजूज और माजूज के मुर्दार को ऐसी जगह ढलानों में जो पहले दरिया रहे होंगे उनमें फेंक देगी और उनकी बू खत्म हो जाएगी। सुन रहे हैं आप? कितनी बड़ी मुसीबत होंगे याजूज और माजूज, कैसे ये दूर होंगे? सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ से, नेकों की दुआ और नेक होना, अल्लाह का प्यारा होना, इससे बड़ा कोई एजाज नहीं। एक रिवायत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आपके रुफका अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। अल्लाह ताला उन पर ऐसे परिंदे भेजेगा जैसे ऊंट की गर्दन होती है, वो याजूज और माजूज के मुर्दार उठा के ले जाएंगे, जहां अल्लाह चाहेगा वहां जाके फेंकेंगे, उन्हें आग में फेंकेंगे। इसमें मनाफात नहीं है, यानी वो पहले जिक्र था दरिया या गहराई का या आग में, यानी उनके लिए वो आग की जगह होगी और वो सब जला के राख कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। फिर अल्लाह ताला बारिश नाजिल फरमाएगा। कोई घर मट्टी का या बालों का ऐसा ना होगा जहां वो बारिश न पहुंची होगी, हर जगह वो बारिश पहुंचेगी। तमाम रूए जमीन को वो बारिश धो डालेगी। अब जमीन आईने की तरह साफ होगी, यहां तक कि उसमें आदमी अपना चेहरा देखेगा जैसे आईने में देखा जाता है। फिर जमीन को हुक्म होगा अपनी खेती उगा, फल वगैरह निकाल और अपनी बरकत वापस लौटा। उस वक्त इतनी बरकत हो जाएगी कि एक अनार को एक पूरा ग्रुप, एक जमात खाएगी और उसके छिलकों से धूप से बचने के लिए छतरी का वो जो आप अम्ब्रेला का काम लेंगे, लोग याजूज माजूज के तीरों ढालों वगैरह को 7 बरस तक ईंधन की तरह जलाएंगे, यानी जो हथियार होंगे याजूज माजूज के वो 7 बरस तक आपके यहां फ्यूल का काम देंगे। कितनी बातें हैं ये। इस हवाले से लोगों ने बहुत कुछ तफसील लिखा है, मैंने आपको उसका सिर्फ बताया मुख्तसरन। हजरत सिकंदर जुल्करनैन की बनाई हुई वो दीवार आज उन्हें रोके हुए है और जब अल्लाह चाहेगा वो दीवार ढह जाएगी।